I can see only 52 students being present in the class today. Alok, you there in the class? Yes, ma'am. Why is the strength so poor? What was your attendance in the last class? 78. And I'll mention it today in the group that 52 students were only present today in the class. Okay, can you just share the PDF document which I had shared last time? I want to complete that document first. Share it, Alok. Should I present it? Yes, you do. You present it. Scroll down more. थोड़ा सा ऊपर जाओ और नीचे जाओ थोड़ा सा और नीचे और नीचे जाओ हाँ come to water jug problem. Scroll more. That's it. Leave it here. First, tell me, have you understood what do you mean by problem? What do you mean by states? In states, we have initial state, we have current state, we have final states or terminal states. We have understood the role of operators in changing the states from initial to current, current to goal state. There, we've also understood, I'm assuming that we've understood that one particular problem space can have more than one solution, but which is optimal for me, I have to decide. So among the optimal solutions, I choose one solution, given the constraints of the parameters at our disposal. Am I clear to all of you? Yeah, Mayank, you there in the class? Mayank or Lakshman? Not present? Okay, tell me, am I clear to you till this point? So I'll move on to water jug problem. आगे बढ़े कि कुछ आपको पीछे का कुछ डिस्कस करना है तो बताइए. I assume that everybody has understood. So let me start with water jug problem. Now, what is water jug problem? Initially, to begin with, I'll talk in a very layman terms before deep diving into production systems. See, there are two jugs of 3 gallon and 4 gallon respectively. Now, these jugs are not marked. I mean to say that you cannot exactly say कि कितना गैलन पानी है भरा हुआ या कितना कम पानी है. ठीक है, एक आपके पास पंप है जिससे आप पानी भर सकते हैं 3 गैलन और 4 गैलन में रिस्पेक्टिवली. ठीक है, आपको करना क्या है, आपको एक तरीका डिवाइस करना है जिससे हम ये तय कर सके कि 3 गैलन और 4 गैलन में हमको एक तय किया हुआ पानी का लेवल चाहिए. ठीक है, तो एक इनिशियल स्टेट हम लेते हैं, वो हम 0 0 लेते हैं. ठीक है, और गोल स्टेट फॉर एग्जांपल 2 0, दैट इज आई वांट 2 gallons of water in a 3 gallon jug and 0 gallons of water in 4 gallon jug. So I have to exactly need to have 2 gallons of water in 3 gallon jug. मेरे पास कोई मार्कर नहीं है, so I need to do it precisely without the help of a marker. तो थोड़ा सा आप कुछ इस पे दिमाग लगा सकते हैं, कुछ सोच सकते, कुछ इनपुट देंगे आप अपनी तरफ से और अपनी तरफ से. या मुस्कान 713 रोल नंबर. प्रॉब्लम समझ में आया मुस्कान? क्या प्रॉब्लम है बेटा, बताइए मुझे. Shall I repeat the problem once again? Okay, please be careful right now. Understand the problem, then only you'll understand the solution. पहले आप एक प्रॉब्लम समझिए, सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे पहले. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि 2 जग है, एक का कैपेसिटी है 3 गैलन, दूसरे का कैपेसिटी है 4 गैलन.
I believe everybody has the text at your disposal, but yeah, थोड़ा सा इसको zoom out कर दीजिए. अभी visible है सबको? Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So let's first understand the problem before deep diving into the solution. और इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे. एक डायरेक्ट तरीके से जो हम एक आम आदमी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किसी प्रॉब्लम को. एक हम सॉल्व करेंगे एआई मेथड से, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन सिस्टम. तीसरा हम सॉल्व करेंगे कंट्रोल स्ट्रैटेजीज मेथड से. Last time I had mentioned there are various types of control strategies like depth first search, breadth first search. तो बड़े सारे तरीके हैं, हम इस particular problem को उससे भी हम solve कर सकते हैं. There are more control strategies which we'll be learning in the upcoming classes. So you'll get to know various methods of solving a simple problem. So first, let us understand the problem before actually trying to get a solution of the problem. Problem क्या है? दो जग है, दोनों जग मार्क नहीं है. एक का कैपेसिटी है 3 गैलन्स, दूसरे का कैपेसिटी है 4 गैलन. यहां तक क्लियर है? अब हमको करना क्या है कि हमको एक इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करना है, से 0-0. मेरे पास वाटर का में पंप है, पानी हम भर सकते हैं, पर हमको एग्जैक्ट एक अमाउंट गोल स्टेट है 2-0 पहुंचना है. 3 गैलन में 2 चाहिए, 4 गैलन में 0 चाहिए. तुमको एग्जैक्टली 2 गैलन कैसे भरे हम? ये मेरा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम समझ में आया मुस्कान? Yes, ma'am. अब देखिए हम थोड़ा सा इसको रीड करते हैं एंड लेट्स follow what I'm reading right now. In this problem, we use 2 jugs of 4 gallons and 3 gallons respectively. 4 holds a maximum of 4 gallons and 3 holds maximum of 3 gallons of water. ठीक है? Now the state space is prepared, pre-arranged pairs giving the number of gallons of water in the pair of jugs at any time. आपको पता है कि 4 gallons क्या क्या होल्ड कर सकते हैं. हम यहाँ पे इंटेग्रल वैल्यू ले रहे हैं, फ्रैक्शनल डेसिमल वैल्यू को कंसिडर नहीं कर रहे. तो 4 गैलन्स क्या क्या वैल्यू होल्ड कर सकता है? 0, 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली. और 3 गैलन भी क्या क्या वैल्यू होल्ड कर सकता है? 0, 1, 2, 3 रिस्पेक्टिवली. आई डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी फ्रैक्शनल और एनी डेसिमल वैल्यूज. टिल हियर द प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. I'll take at least 2 to 3 classes to make you understand water jug problem. So 2 classes, rather like next class में water jug problem में ही हम deep dive करेंगे. The start state is 0, 0 and the goal state is 2, n. N can take any number if n can take 0, 1, 2 or 3, right? Where n may be any but is limited to 3 holding from 0 to 3 gallons of water or empty. Clear? N कुछ भी हो सकता है. N actually is representing 3 gallon jug का कैपेसिटी. तो n क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं. ठीक है? 3 and 4 shows the name and numerical numbers shows the amount of water in jugs for solving the water jug problem. The major production rules for solving this problem are shown below. ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे कि हम प्रोडक्शन रूल्स को थोड़ा समझेंगे. आप थोड़ा स्क्रीन को स्क्रॉल करिए नीचे. यहां तक क्लियर है सबको कि नहीं? Yes, ma'am. यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मयंक, लक्ष्मण, आलोक? No, ma'am. No, ma'am. यहाँ तक सब क्लियर है ना? Yes, अब चलिए हम एक इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि मेरा गोल कमांड क्या है. ठीक है? आपको पता है कि आपके पास 2 जग है, एक का कैपेसिटी 4 गैलन है, एक का कैपेसिटी 3 गैलन है. ठीक है? आपके पास जग्स मार्क्ड नहीं है, लेकिन आपके पास पानी भरने का एक पंप या एक पाइप है. तो आपको एक स्टार्ट स्टेट करना है 0-0 और गोल स्टेट 2n. हम मान के चलते 2-0, मतलब हमको 4 गैलन वाले में 2 गैलन पानी चाहिए और 3 गैलन में 0 पानी चाहिए. कुछ भी n कुछ भी हो सकता है. n क्या क्या वैल्यूज ले सकता है? 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है रिस्पेक्टिवली. सो राइट नाउ लेट मी टेक अ गोल स्टेट ऑफ 2-0. टिल हियर एनी प्रॉब्लम? Shall I move forward for the production rules now? Yes, ma'am. चलिए, तो अब पहला ये 12 कंडीशंस आपको याद करने होंगे. आप समझ रहे हैं? ये 12 कंडीशंस आपको याद करना है. ठीक है? तो इनिशियल कंडीशन क्या है? 4, 3. ठीक है? If 4 is less than 4, that is the 4 गैलन का कैपेसिटी 4 से कम है, तो 4 गैलन वाले को पूरा ब्रिम तक भर दीजिए. ठीक है?
समझ में आया? Yes, ma'am. अब दूसरा रूल क्या है कि अगर 3 गैलन का कैपेसिटी 3 से कम है तो 3 गैलन वाले जग को पूरे ब्रिम तक भर दीजिए और 4 गैलन को टच नहीं करना है। क्लियर? Am I clear with the two rules? Ma'am, can you repeat again the first rule again? The first देखो rule. फर्स्ट वाला क्या है बेटा मयंक, Yes, आपके ma'am. पास 2 जग से 4 और 3 गैलन, अभी आप Yes, 4 गैलन को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है? अगर 4 गैलन वाले में 4 से पानी कम है तो आप पाइप से 4 गैलन वाले में पानी को ब्रिम तक भरेंगे, 3 गैलन को आप टच भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर? Yes, ma'am. रूल नंबर 2 में आप क्या कर रहे हैं? आप 4 गैलन को टच भी नहीं कर रहे, 3 गैलन का पानी को चेक कर रहे हैं। 3 गैलन में अगर 3 से पानी कम है तो उसको आप ब्रिम तक भर रहे। यहां तक क्लियर है? 2 रूल्स को क्लियर करें। आगे Yes, ma'am. बढ़ें। चलिए अब क्या कह रहे हैं कि 4 गैलन का पानी अगर 0 से ज्यादा है तो उसको आप ड्रेन आउट कर दीजिए, मतलब पानी ग्राउंड पे बहा दीजिए। दैट इज 4 गैलन वुड बी 0 राइट नाउ, और जो 3 गैलन कैपेसिटी है उसको हम टच नहीं कर रहे। क्लियर? Yes, ma'am. चौथा रूल है, अब हम 3 गैलन को ट्रीट करें। अगर 3 गैलन में पानी 0 से ज्यादा है तो उसका पानी हम ग्राउंड पे बहा दे रहे हैं, ठीक है? 4 को हम टच नहीं करेंगे। ये 4 रूल्स क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. अब 5वां रूल बड़े ध्यान से देखिए। 4 और 3 में कुछ पानी है, कुछ है लेकिन हमको नहीं मालूम है कितना है। इफ 4 गैलन का कैपेसिटी प्लस 3 गैलन कैपेसिटी 4 से कम है, आई रिपीट, अगर 4 गैलन और 3 गैलन जितना मिलाकर पानी है वो 4 से कम है तो हम क्या करेंगे? 3 गैलन का पानी हम 4 में खाली कर देंगे। ये समझ में आया? Yes, ma'am. पांचवा रूल क्लियर है सबको? तो हम छठे रूल में आए। अब छठे रूल में हम क्या कर रहे हैं? 4 गैलन और 3 गैलन का पानी अगर हम को मिलाएं और वो 3 गैलन से भी कम है तो 4 गैलन का पानी को एम्प्टी करेंगे 3 गैलन में। क्लियर? Yes, ma'am. तो पहला 6 रूल्स में मानती हूं कि आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं 7वां में, जो पानी 3 गैलन में जितना भी है, हाँ हम मान के चलते कि 0 से ज्यादा है, उसको हम 4 गैलन में हम खाली करें ताकि उसको 0 कर दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अज्यूम, मेरा ये अजम्पशन है कि 4 गैलन में 0 पानी है और 3 गैलन में कुछ अमाउंट है वो 0 से ज्यादा है, तो हम क्या कर रहे हैं? जो भी जितना भी पानी 3 गैलन में हम 4 गैलन में खाली करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ वाटर विच 4 गैलन इज होल्डिंग राइट नाउ इज 3, दैट इज द वैल्यू विच वाज देयर इन 3 गैलन राइट नाउ, और 3 गैलन वाले में पानी 0 हो गया। ये समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं? No, ma'am. समझ आया आपको? अब 8वां रूल Yes, क्या है कि 4 गैलन में कुछ पानी है, हमको नहीं मालूम क्या पानी है, ठीक है, लेकिन 0 से ज्यादा है, और 3 गैलन में हम मानते कि 0 पानी है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? 4 गैलन में जो भी पानी है उसको हम 3 गैलन में खाली कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 0 4 मतलब नाउ 3 गैलन इज होल्डिंग द वैल्यू ऑफ वाटर विच वाज इनिशियली प्रेजेंट इन 4 गैलन, ठीक है? पहला 8 रूल्स क्लियर है कि नहीं? पहला 8 रूल्स क्लियर है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हम अज्यूम करते हैं कि 4 गैलन में 0 है और 3 गैलन में 2 है। एक कंडीशन आएगा, अभी हम लोग जब टेबल बनाएंगे ना सोल्यूशन, तब देखिएगा ये हम लोग आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि आई एम सिंपली emptying the 3 gallon into 4 gallon, that is 20, और 10th रूल भी है कि 20 vice versa. Are we clear till first 10 rules? Yes, ma'am. Now let's come to the 11th rule. That is, अब देखिए 4 3 में कुछ पानी है एंड 4 का पानी 4 से कम है, ठीक है? तो जो पानी कम है, जितना डिफरेंस है वो हम 3 गैलन से ले रहे हैं। सपोज आई डोंट नो द डिफरेंस राइट नाउ, सो दैट लेट्स टेक दैट डिफरेंस एज DIFF। तो 3 गैलन से उतना
अमाउंट हम 4 गैलन में ट्रांसफर कर दे, तो 4 गैलन कैपेसिटी क्या हो गया, 4 कंप्लीटली फुल, और 3 गैलन में कितना पानी बचा, 3 माइनस डिफरेंस। क्लियर? सिमिलरली लास्ट वाले रूल में हम क्या कर रहे हैं, 3 और 4 है, तो 3 वाले गैलन में 3 से पानी कम है, तो हम 3 गैलन को 4 गैलन में उतना भरेंगे जितना वो 3 भर जाए, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस डिफ एंड 3 गैलन इज फुल, 3। ठीक है? आर दीज 12 रूल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? मैम लास्ट वाला 2 एक बार समझा दीजिए ना। एक बार फिर से, ओके, हम 11 और 12वां रूल फिर से एक्सप्लेन मैम प्लीज, एक बार ध्यान 9th और 10th भी। 10th और 9th भी। अच्छा चलिए फिर से 9th 10th 11th 12th हम फिर से चारों रूल को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। मुस्कान, हम एक हाइपोथेटिकली मान रहे हैं कि 4 गैलन में 0 पानी और 3 गैलन में 2 पानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 पानी को एम्प्टी कर रहे हैं 4 गैलन में, 2 0 कर दे रहे हैं। क्लियर मुस्कान? यस मैम। तो सिमिलरली 10th रूल क्या कहता है कि 4 गैलन में 2 लेवल का पानी है और 3 में 0 है, हम उसको बस वाइस वर्सा एम्प्टी कर रहे हैं, मतलब 0 2 कर दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है मुस्कान? यस मैम। अब हम 11th और 12th को बड़े ध्यान से समझिएगा कि 4 गैलन में पानी है और 3 गैलन में भी पानी है, ठीक है, लेकिन 4 गैलन में 4 उसका फुल कैपेसिटी तक पानी नहीं है, तो उसको फुल कैपेसिटी हम कहां से करें, 3 गैलन से, और कहां तक है, जब तक वो भर ना जाए। तो 4 गैलन कैपेसिटी क्या हुआ, 4, और 3 गैलन में कितना बचा, 3 माइनस डिफ। डिफ इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच यू poured from 3 gallon to 4 gallon now to fill the water in 4 gallon jug till the brim. Am I clear? Am I clear? कि फिर से बताऊं? Yes, ma'am. फिर से बताऊं? No मैम। I'll repeat. I have no issues. आपको जब तक समझ नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? अब आखिरी रूल क्या कहता है कि 3 गैलन में भी कुछ पानी है और 4 गैलन में भी कुछ पानी है, ठीक है, लेकिन 3 गैलन में 3 से कम है, 3 holds water not up to the brim. So I want to fill the 3 gallon jug up to the brim with what? With the amount of water from 4 gallon jug. ठीक है? तो 4 में कितना बचा, 4 minus diff, और 3 में कितना बचा, पूरा भर गया 3. Am I clear to all the 12 rules are clear to you? Yes, ma'am. अब देखते हैं हम इन रूल्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़े, स्क्रॉल करिए आप लोग नीचे। अब देखिए, इधर रखिए, अब आप देखिए इनिशियल स्टेट है मुस्कान। नाउ पे अटेंशन हाउ वी गेट द सॉल्यूशन टेबल। यस मैम। अभी हमने 0 to 20 आपको बताया ना, उन रूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए ध्यान से। इनिशियल स्टेट क्या है, 0 0, दैट इज 4 गैलन जग है 0 एंड 3 गैलन जग है 0। रूल्स अप्लाइड ब्लैंक। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप 2 टेबल बनाइएगा। यहां पर क्या किया, 0 3 से स्टार्ट किया, आप 4 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट विल सिलेक्ट द टेबल विच हैज गॉट लेस नंबर ऑफ स्टेट्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक कॉपी उठाइए और एक कॉपी में साइड बाय साइड 2 टेबल बनाइए। एक 0 3 का तो टेबल यहां बना हुआ है, एक आप भी शुरू करिए 4 0 से। क्लियर विवेक? 731। Yes, Please ma'am. just do not log in and you're not there to attend the class. We really make an effort to make you understand. बहुत मेहनत लगता है, ऑफलाइन क्लास से ज्यादा मेहनत ऑनलाइन क्लास में लगता है, बिकॉज आई रियली डोंट नो कि मैं कहाँ पे ब्लाइंड वाले का गेम खेल रही हूँ। It's, you know, it is very disheartening when my students don't understand what I'm trying to explain it to them. It's really very painful. So please just do not log in and move out. Be there, try to understand my lectures. It's going to be really helpful for you to write the answers. ठीक है, तो सब पेन एंड पेपर लेकर बैठे हैं, हम शुरू करें। देखिए, हम 0 0 किए, हम 0 3 किए, मतलब हम 3 गैलन को पंप से पानी भर दिए पूरा ब्रिम तक। यहां तक क्लियर है? अब 3 गैलन का पानी हम 4 गैलन पूरा भर दे, 3 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि वापस से 3 गैलन का जग को लेट्स कम टू दिस स्टेट, 3 3, मतलब 3 गैलन को वापस से भर दिए। क्लियर? अब I am trying to fill the 4 gallon jug up to the brim with the help of 3 gallon jug. तो 4 2, ठीक है, इसमें तो खाली 3 है ना, हमको मालूम है। तो इस स्टेट से यहाँ पर 1 गैलन तो डाल दे, 4 2। अब 4 गैलन का पानी हम जमीन पे गिरा दिए, तो क्या बचा, 0 2। अब वाइस वर्सा,
3 gallon जग से पूरा पानी 4 gallon में खाली कर दे 20. Did you understand the solution table? We have just written the rules applied. मैम अगर हम लोग 4 गैलन से स्टार्ट करेंगे तो फिर कैसे बनेगा, एक बार बता दीजिएगा ना. चलिए हम लोग खुद से चले कोशिश करते हैं. I'll also keep a pen and paper. चलिए इनिशियल स्टेट क्या है 0 0, फिर है 4 0. ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 3, मतलब 3 गैलन को भर देंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे 4 गैलन का पानी जमीन पे गिरा देंगे 0 3. अब क्या करेंगे 3 3, मतलब 3 गैलन का पानी इसमें भर दे 3 0, सॉरी, फिर 3 3, देन 4 2, देन 0 2, then 2 0. Am I clear to all of you? मैम सेकंड वाले में फिर इसमें तो 1 3 हो जाएगा ना मैम. चलिए फिर से देखते हैं ना मुस्कान. पहले 0 0 है 4 0 है, यहाँ तक क्लियर है. यस मैम. 4 0 से हम 4 3 कर दिए, क्लियर है. 3 गैलन को भर दिए. यस मैम. आप क्या कि 4 गैलन का पानी जमीन पे गिरा दिए 0 3 हो गया. यस मैम. तो 0 3 के बाद तो सारा टेबल सेम है ना, जैसा ये वाला कर रहे हैं. यस मैम. 0 3 तो आ गया ना. I started with 4 0 but I came to 0 3. तो मेरे 2 स्टेट इसमें एक्स्ट्रा है, तुम 4 0 टेबल रिजेक्ट करते हैं. क्लियर? यस मैम. एनी डाउट टिल हियर? मैम वो 4 3 की है बोलते, मतलब अगर उसमें 3 डाल दिए तो फिर इसमें तो 1 बचना चाहिए ना. किसने 3 डाल दिए? देखो मैं थर्ड और क्या किया मैंने 4 3, मैंने 3 गैलन को भर दिया. ठीक है विद्या. यस मैम. अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, 4 गैलन का पानी जमीन पे गिरा दिए, तो क्या हो गया 0 3. क्लियर? यस मैम. 0 3 आ गया. अब उसके बाद टेबल देखिए स्क्रीन पर. 0 3 से तो सोल्यूशन टेबल सेम ही होगा ना. Am I clear or not? Yes. Yes मैम. I will not proceed further. आप इनको इसी को घर पे जाके प्रैक्टिस करिए. एक क्वेश्चन लिखिए. All of you write down one question. There are 2 jugs of 7 gallon and 8 gallon, 8 gallon and 7 gallon respectively. There are 2 water jugs of 8 gallon and 7 gallon respectively. The jugs are not marked. There is a water pump with which you can fill these jugs respectively. लिख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग सब कोई? यस मैम. इसके बाद लिखिए 8 gallon jug can only hold integral values, that is 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 7 gallons can hold integral values in low, that is 0 1 2 3 4 5 6 7. Am I clear? Yes ma'am. Initial state is 0 0 and goal state is 4 0. Initial state is 0 0 and goal state is 4 0. Write down the rules and the solution table with the rule number applied. Clear? Clear? What was the goal state? Goal state is 4 0. Initial state is 0 0. Am I clear to all of you? Yes ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्वेश्चन बनाएंगे आप, फिर हम प्रोडक्शन सिस्टम कल डिस्कस करेंगे. आई विल नॉट गो. और कल हम आपको 4 क्वेश्चन वाटर जग प्रॉब्लम पे और देंगे. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज वाटर जग प्रॉब्लम से एंड टर्म में जरूर से आता है. एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट्स गाइस? बी इंटरैक्टिव, बी वोकल अबाउट इट. ओके, आई एम एंडिंग द क्लास राइट नाउ. आलोक, आज का जो क्वेश्चन है ना, अभी मैंने जो लिखवाया उसको ग्रुप में अपलोड करिए, ठीक है? एंड उसका सोल्यूशन, लेट्स सी हु इज द फर्स्ट वन टू गिव द सोल्यूशन टू मी एंड क्लिक द स्नैप ऑफ द सोल्यूशन एंड अपलोड इन द ग्रुप ओनली कि मैम आई हैव डन इट.
Anyone? Let's see how many of you can do it. Clear? अगर किसी एक ने कर लिया और मैंने चेक कर दिया कि ये ओके है तो फिर दूसरे को करने की जरूरत नहीं है. Let's see who can do it first. Okay, thank you so much, guys. See you tomorrow. And I had missed my class yesterday. For that, I'm going to cover up on Saturday. Is that okay with all of you? Saturday at 11:40, you guys are free? Yeah, Alok. Yes. तो जो मैंने कल क्लास मिस किया because of heavy rain, there was some electricity issue at my place. But बोलिए. maybe classes off हो जाए. क्यों? एग्जाम डेट्स आ गए. अच्छा, आ गए क्या एग्जाम?